Lavender, isn't it? मेरी राधा भी यही परफ्यूम लगाती थी. In fact, I miss her every single day of my life. but सबसे ज्यादा मैं उसे तब मिस करता हूं जब तुम्हें देखता हूं. जैसे वो कहीं गई ही नहीं, तुम में बस गई हो. But it's okay now. I can handle it. I can. Goodbye to the great Rajdeep Rai Singhani. अनुष्का मैम, सर आर यू ओके? अनुष्का मैम, डैड क्या हुआ? डैड तेरा क्या हुआ? Where's the nurse? Nurse, what happened? मैम exactly क्या हुआ मुझे बताओ. And what are you doing here? I was passing by, then sir की आवाज आई तो मैं चेक करने आई थी and I just asked him, are you okay sir? And he responded. He just responded. Yeah. Tara, you responded. Tara, can you hear me? Tara. कुछ बोलिए ना आप. राधिप आंखें खोलो बेटा. हाँ हाँ. His eyes moved. His eyes moved. Dad, can you hear us? Dad, if you can hear me, please give me a sign, Dada. Please give us a sign, Dada. He can hear us. Yeah. Thank you, Ankita. It's all because of you. It's all because of you. Thank you. तुमने मेरे राज को वापस लिया है. Dad, we're all waiting for you, okay? Come back to us soon, Dad, please. Please, Dad. भाई Chachu, he responded. राजदीप, तुम्हें नहीं पता ये वक्त कैसे गुजरा है. झूलेलाल जी डाढ़ी कृपा है, डाढ़ी कृपा. भाई, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे एब्सेंस में मुझे इस घर का बड़ा बेटा बनकर घूमना पड़ रहा है. It's not my whiskey, not my gin. So you better get up and take responsibility. भाई, मुझसे नहीं हो रहा है, all right? Please. Dada, this is Ankita. You remember her? आप ही ने इसे रेकमेंड किया था. ये हमारी फर्म का हिस्सा है ना. She's almost family. And Dada, it's because of her that you responded. Dada, can you hear me? Dada, Ankita ne hum sabko, she's given us hope that you'll be back soon. Let's thank her, Dada. Dada, please. Anu, I think we should let him rest. Cheers to this lovely girl, Ankita. I don't know how to thank you, beta. जो खुशी तुमने आज दी है ना इस परिवार को, it's absolutely priceless. Am I right? Thank you, Dadi. But honestly, I still remember the day जब राजदीप सर ने मुझसे कहा था 10 AM, my office. और मैं आई भी थी.
ऑफिस भी ज्वाइन किया, बट सर वाज नॉट अराउंड. बट देन I met Anushka ma'am and this amazing Rai Singhani family. And मुझे realize हुआ that family actually होती क्या है. Thank you, Daddy. I know हम एक इमोशनल कंट्री की इमोशनल फैमिली से हैं, but I don't know हम इस लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं. I mean, we hardly know her. और बड़े पापा अचानक से रिस्पॉन्ड कैसे करने लगे, क्या पता. Excuse me. He's back. मैं अभी मिल सकता नहीं नहीं, sorry, he's resting right now. हूँ. Okay. Can't wait to see him back in action. I know. Low price for guessing. दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये कोई जगह ये सब करने की? क्यों? जगह में क्या प्रॉब्लम है? राय सिंघानी मैंशन है और तुम राय सिंघानी मैंशन की प्रिंसेस जिसने सोते हुए किंग को अपनी वॉन्ड से जगा दिया. टेल मी व्हाट एग्जैक्टली वाज योर एब्राकडाब्रा? Why do you care? 1 second. How do you know? यू नो मेरा एक बॉस है, उनका नाम विराट है, तुम जानती होगी शायद उनको. यू नो ही इज दिस टॉल, दिस अनोइंग एंड दिस बिगर फ्लर्ट. तो जानती हो ना? तो अगर उनको पता होगा तो मुझे तो पता ही होगा ना आफ्टर ऑल. Just leave now, yaar. No, mercy, princess, mercy. There's much to do with hate, but more with love. देखो, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं. Forever and ever, tell me I'm your prince. Tell me I'm your prince. वरना मैं घर पे ऊपर चढ़ के कूद जाऊंगा वहां से. बताओ. That'll be a favor. Please, कूद जाके. That's toxic. तो I've changed my mind. नहीं करूंगा. Will you please stop? ये cheap फिल्मी हरकतें करना बंद करेगा, please. Okay. कहो तो पूरी गेम ही बदल दूं. बता दूं अनुष्का को that you try to kill Anushka's dearest daddy. ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? सिंध मैं ना किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ. तो जिसको जो बताना ना जाके बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे ना तो तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी और ना ही तुम्हारी. So do whatever you want. लड़ाया मुझे ब्लैकमेल करने वाला. ठीक है. Okay. You know, I'm so happy, Anu. Rajdeep sir will only get better from here. Yes. But please update देती रहना सर की हेल्थ के बारे में. हेलो मैम, हेलो सर. सॉरी मैं बिना बताए आ गया यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि राजदीप सर इज डूइंग बेटर नाउ. इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस एट आवर लीगल. एक्चुअली मैम मैं राजदीप सर से मिलना चाहता था. I'm sorry, Harsh. He's resting right now and it's a bit too late. I know it's a little late. Actually मैम एक और रीज़न था मैं यहाँ पर क्यों आया. Actually मुझे आपको कुछ बताना है. There's something that you're not aware of. Okay. आप जितेंद्र नोकवाल जी को जानते हैं? Jeet uncle. हाँ जी, he is my father actually. He was my dad's old friend, but दोनों के बीच this. हाँ, फिर वो दोस्त नहीं रहे. Actually after the first case, they had a fallout. You're Jeet uncle's son? जी. पहले क्यों नहीं बताया? मैम वो मैं खुद के मेरिट पे एंट्री लेना चाहता था फर्म में और दूसरा अगर डैड का नाम लेता तो रिजेक्ट भी हो सकता था. बट ही डजंट नो दैट वी आर वर्किंग टुगेदर. एक्चुअली राजदीप सर के एक्सीडेंट के बारे में जब उनको पता चला तो वो काफ़ी अफेक्ट हुए थे. बट अब उनकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट सुन के ही विल बी वेरी हैप्पी. आई एम श्योर too. जैसे डैड बेटर होंगे, प्लीज गेट जीत अंकल होम.
maybe they rekindle their old friendship. That'll be wonderful actually. ऑल्सो थैंक यू इन एडवांस, और अगली बार मेन गेट से आना, बैक गेट से नहीं. सर आपको तो पता ही है ना, सीधी चीजें करने में मजा नहीं आता, थ्रिल नहीं मिलता मुझे. बट थैंक यू, आई विल सी यू एट द ऑफिस. मैंने नोटिस किया है हर्ष ना मेहता केस पर बहुत मेहनत कर रहा है. With the irony, Harsh के father और मेरी dad were together on the first Mehta case. But पता नहीं केस के बाद apparently कुछ हुआ उन दोनों के बीच and they stopped talking to each other. I'll take leave. Thanks. Bye. Thanks for today. See ya. Where's your car? Sorry. Anna, it's parked outside. Okay. See ya. Your Honor, Dr. Leena Matani एक professional counselor है and she's bound under the oath of confidentiality. But in this special circumstance, तारा कौल के murder case में वो legally हमारी मदद कर रही है. Your Honor, Dr. Leena Matani 3 साल तक तारा को treat कर रही थी for severe postpartum depression through medical and counseling sessions. Dr. Matani, तारा के 3 साल के लंबे treatment का result क्या रहा? Well, Tara's recovery was remarkable. It was almost miraculous. तारा के इसी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मैंने डिसाइड किया कि उसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर मतानी, कैन यू प्लीज एलैबोरेट रिकवरी के बाद की तारा कैसी थी? एज अ फ्रेंड, तारा थेरेपी रोकने के बाद भी मुझे कभी कभी मिलने आती थी. एंड आई कुड सी दैट शी हैड रिकवर्ड फ्रॉम हर पोस्टपार्टम इश्यूज. वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफ़ी एक्साइटेड रहती थी और अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी एनिमेटेडली डिस्कस करती थी. इन शॉर्ट, शी वॉज इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. योर ऑनर, दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टेस्टिमनी. ये एस्टैब्लिश करती है कि तारा के आखिरी दिनों में शी वॉज इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड. इन फैक्ट, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हर फ्यूचर. सो क्लियरली देयर वर नो suicidal tendencies indicated. डॉक्टर मतानी, तारा की रिकवरी में उनके हस्बैंड प्रशांत राधाकृष्णन का क्या रोल था? वेल, प्रशांत एंड तारा सीम टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. दोनों अच्छे पेरेंट्स भी थे. पर फिर तारा ने प्रशांत के अफेयर को डिस्कवर किया. अफेयर विथ मिनिस्टर संध्या गोखले. उसके बाद तारा शोड साइंस ऑफ स्ट्रेस. वो थोड़ी हर्ट थी, थोड़ी परेशान थी, but there were no symptoms of depression. And what was the source of stress? Gaslighting by her husband, Mr. Prashant. Dr. Matani, can you please explain to the court what is gaslighting? Your Honor, gaslighting एक psychological form of manipulation है जिसमें जो गैसलाइट कर रहा होता है वो विक्टिम को अच्छी तरह से समझा देता है कि किसी भी सिचुएशन में गलती हमेशा विक्टिम की है. इनफैक्ट उसके पास इतनी पावर ऑफ कन्विंसिंग होती है कि वो विक्टिम को समझा देता है, कन्विंस कर देता है कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं. और थोड़े दिनों बाद विक्टिम ये एक्चुअली यकीन करने लगता है कि उसमें वो सारी खामियां हैं. और डॉक्टर मतानी, तारा was going through this, correct? एब्सोल्युटली. मिस्टर प्रशांत तारा को मेंटली मैनिपुलेट कर रहे थे. उन्होंने उनको समझा दिया था कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो सिचुएशंस को इमेजिन करती हैं और कुछ दिनों में वही सिचुएशंस उनके लिए रियल हो जाती हैं. Quite a task, I must say. So आप ये कहना चाहती है कि प्रशांत ने अपनी फोर्सफुल पर्सनालिटी को यूज करके तारा को मैनिपुलेट किया, उसके दिमाग में सेल्फ डाउट क्रिएट किया, करेक्ट? इनिशियली तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि उसका हस्बैंड उसके साथ क्या करना चाह रहा है. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में औरत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं, पर तारा ने इस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी और कंपोजर के साथ हैंडल किया. अपने हस्बैंड की लॉयल्टी को क्वेश्चन करने के बजाय
Tara termed it as a glitch in his moral conduct, in his moral compass. And उसको समझ में आ गया था कि प्रशांत का ये एक नेचर में फ्लॉ है. Doctor, what exactly do you mean by suicidal tendencies? See, suicidal tendencies or suicidal thoughts are a mental process in which the person thinks about suicide or how he's going to go about it, until that one final moment when he decides whether to go for it or to withdraw from it. आपको कभी ऐसे लगा कि तारा was in this state of mind? कभी उसने ऐसा behavior reflect किया? नहीं, मुझे तारा में ऐसी कोई symptoms नहीं नजर आए. That's all, Your Honor. Thank you, Dr. Mathani. Yes? आई साहिबा, थेरेपी की जरूरत तो मुझे पड़ने वाली है इसके बाद. डॉक्टर मथानी, सो 3 साल तक आप तारा की थेरेपिस्ट रही. यस, वंडरफुल. 3 साल के बाद आपने डिसाइड किया शी नो लॉन्गर नीड्स थेरेपी, तो आपने थेरेपी रोक दी. करेक्ट. तो आपकी वैलिडेशन के मुताबिक अगर हम मान लें कि माय क्लाइंट मिस्टर प्रशांत राधाकृष्णन वाज gaslighting तारा, राइट? दैट ही समहाउ कन्विंस्ड हर कि वो जो चीजें समझ रही हैं वो उन्हें सिर्फ इमेजिन कर रही हैं. सो अगर हम ये मान लें कि ही वाज ऑल ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दैट, बट योर ऑनर आजकल सोशल मीडिया भी है, सो यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट even before going to trial, a man is hated, bashed, spammed, cancelled, and hashtagged. So there's hashtag ban Mr. Prashant Radhakrishnan, hashtag ban the characterless news anchor, hashtag ban the gaslighting Mr. Prashant Radhakrishnan, hashtag this, hashtag that. But how does it translate into a murder trial? How? A murder trial? अगर हम मान भी लें, how does any of this prove at all that अचानक मेरे क्लाइंट ने एक दिन हाथ में छुरा उठाया और अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया ऐसे ही without any motive? और ऐसी पत्नी का जो इनके टेस्टामेंट के हिसाब से उनके अफेयर से भी नाखुश नहीं थी. She took it in her stride. She was quite composed about it. She termed it not anything terrible, but simply a character flaw. Your Honor, as far as the suicide goes, this is a report by the Suicide Prevention Council of India, which has done extensive research. Can I have my specs, please? Let me read this out to you. The Indian Suicide Prevention Committee की एक extensive report जो कहती है a total of 48% of participants were impelled by sudden inclinations to attempt suicide. Sudden inclinations, ये वो लोग हैं जिनकी कभी कोई हिस्ट्री ही नहीं थी मेंटल ट्रॉमा या स्ट्रेस की. एंड डिस्पाइट दैट द सुइसाइड्स हैपेंड. योर ऑनर, आई एम सो सॉरी, बट आपकी इस टेस्टिमनी का कोई मतलब नहीं है. यू सी व्हाई? बिकॉज हर टेस्टिमनी इज लाइक this patient has no fever, therefore there is no infection, so we don't need to do a blood test. Something like that. Don't you think, Dr. Mathani, that perhaps आपकी जो patient turned friend थी, उसकी वजह से आपकी judgment में थोड़ी सी गलती आ गई? Objection, Your Honor. Dr. Leena Mathani के professional reputation पर सवाल उठाना is uncalled for. Sustained.
डॉक्टर लीना से मेरा एक आखिरी सवाल। डॉक्टर, आपने कहा कि सुसाइडल टेंडेंसी रखने वाले लोग अक्सर दिमाग में सुसाइड के बारे में सोचते रहते हैं, प्लान बनाते हैं बिफोर दे फाइनली अटेम्प्टेड। यस, सो इट्स पॉसिबल दैट तारा कौल पहले से प्लान बना रही थी और शायद उन्होंने एक दिन पहले ये प्लान बना लिया था, एंड अगले दिन जब उनका झगड़ा मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, अपने पति के साथ, तो अचानक इन द हीट ऑफ द मोमेंट शी डिसाइडेड कि मैं तो अपनी जान लूंगी, लेकिन साथ में इन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराऊंगी। सो यस योर ऑनर, दिस वाज अ केस ऑफ सुसाइड विद an attempt to frame abetment to suicide by the deceased. That's all. The prosecution witness shall examine after 5 days. The case is adjourned. रैचल मैडम ने क्या तूफान लाया ना आज, मजा पड़ी गई। हमारे सूरत में ना हमारी पड़ोसन है ऐसी नॉन स्टॉप पर आज 2 लेडीज के बीच में लड़ाई देख के मजा आ गया सच। पूरा लाइफ में अपना फोकस ठीक करिए, साफ नजर आएगा कि आपको 2 लेडीज नहीं, कोर्ट में 2 लॉयर्स थी। Let's go. But this time I we can always. Yeah, make Ma'am? that happen. Can I leave now? Thanks, Romina. Bye. Bye. Listen, But Anushka, once we have Anushka. that, can you please ask him to leave? I'm a bit busy. May I help you, sir? oh, come on, yeah, Anushka, stop being a kid. Excuse me? जैसे तुम उस दिन अपने ऑफिस में थे, वैसे आज मैं कोर्ट में हूँ. This is my workplace. So please, learn to value my time. Okay, listen, I get it. I'm sorry, okay? उस दिन काम का बहुत स्ट्रेस था, शूटिंग की डेडलाइन सर पे, even Aisha has been troubling me and क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते? Can we not just talk it out? Let's be reasonable, ना? Is that it? जब तुम बिजी होगे, so you won't return my calls, messages के जवाब नहीं दोगे, और जब मेरा काम important है, so I'm being unreasonable. Why? Is that because I'm a woman and you're a man? क्योंकि तुम्हारा काम मेरे काम से ज्यादा important है? Are you serious? अरे, you're making this a gender war. ये अचानक से man woman कहाँ से आ गया? Always been like that, Akshat. अनुष्का, मैं प्रशांत से भी नहीं मिला, okay? Because of you. No choices. Remember? तुम ही ने कहा था ना? And you're right. In fact, you're always right. But I can't afford to be wrong now, Akshat. तुम मेरे काम को seriously लो या ना लो, but my commitment is only to my work. Please get that.